Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your holy name, King of glory. Hallelujah. Bless your holy name. We exalt you, Jesus of Nazareth. We exalt you. We magnify your name. Hallelujah. Thank you for the angelic host that is in this place. Thank you for the covering of the precious blood of Jesus. Thank you for the hedge of the blood of the Lamb. Thank you for the wall of fire that is in this place. Mighty God of Israel, we bless you. We magnify you. Hallelujah. We exalt you, mighty God of Yashrael. Hallelujah. Hallelujah. Be exalted this evening. Be lifted up. We'll be lifted up in this evening, Lord. We magnify your name. For your name is above every other name, Lord God. Hallelujah. We bless you, Lord. We bless you. Bless you. Bless you. We praise you. Praise you, Lord. Praise you. Praise you. Praise you, Lord. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 हो धन्यवाद 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 हो तेरी महिमा तेरी स्तुति हो हालेलुया धन्यवाद हालेलुया यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुए नस्ब कितनी ही सूलियां यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियां मगर इस सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी जुदा लगी तेरा खून बरखा की रुत लगा तेरा खून बरखा की रुत लगा तेरी सांस बादे सबा लगी हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी Hallelujah. Lord, we bless you, we praise you. Lord, we magnify you. For there is none like you, there is none besides you. You do wonders in heaven above, upon the earth, beneath the earth. Your name is so glorious, Lord. Your name is so magnanimous, so high, lifted up and exalted, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Make us the fragrance of your name, Jesus. Make us the fragrance of your name. Lord, make us the fragrance, the aroma of your glorious name. This evening, Lord, we surrender our hearts to you. We surrender our mind. We surrender our will, Lord, to you. We surrender our whole being. Hallelujah. Jesus, you are the owner of our lives. You are the possessor of our life, Lord Jesus. We surrender you our soul. We surrender you our heart. We surrender you our whole being, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. तेरा धन्यवाद. Hallelujah. मेरे संग मिलके गाइए. तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए अंगूर की बेल से पैवस्ता
हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु, गाइए मेरे साथ। यीशु 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 यीशु। Hallelujah. Precious King of Glory, we cherish your presence so deeply. Above anything else in this universe, we long for your presence. For in your presence there is the fullness of joy, and at your right hand there are pleasures forevermore. Never exhausting pleasures and delights are in your presence. May you shower your presence so lavishly upon this telecast, upon each and every one that is under your voice, the voice of your servant, Lord. May the words that will come out of the mouth of your servant, may they be your words. May they be the bar. Hallelujah. You said my words are spirit and they are life. Hallelujah. May they produce life, Lord God. Father, I commend everyone under your blood, and I unleash your angels, Lord, around each and every person. And we give you praise and honor and glory. यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जैसा आपने फेसबुक पे मेरा पोस्ट देखा होगा, महानेम हिब्रू वर्ड है जिसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपनी बाइबल आप निकालिए जल्दी से 32nd चैप्टर ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक का 32 अध्याय निकालिए। सुनिए ध्यान से। उत्पत्ति 32 के पहले वचन में, एंड जेकब वेंट ऑन हिज वे एंड द एंजल ऑफ गॉड मेट हिम, एंड व्हेन जेकब सॉ देम ही सेड, दिस इज गॉड्स होस्ट, एंड ही कॉल्ड द नेम ऑफ दैट प्लेस महानयम। हालेलुया। याकूब अपने ससुराल से वापस लौट रहा है। 20 सालों के बाद अपने घर वापस जा रहा है याकूब। याकूब के साथ उसकी 2 पत्नियां और 2 कंक्यूबाइंस और 11 बच्चे और ऊंट और हॉर्सेस, खच्चर एंड कैटल एंड एवरीथिंग। ही इज गोइंग बैक आफ्टर 20 years लोडेड विद एवरी ब्लेसिंग। आपको मालूम, मैंने आपको बताया था 28 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, 28 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब अपने माता पिता के घर को छोड़ के जाता है ताकि उससे पत्नी मिले, क्योंकि परमेश्वर कहता है, उससे वाचा बांधता है कि तेरा सीड रेत के कण के जैसा और आकाश के तारों के जैसा होगा। अपनी पोस्टेरिटी, अपनी प्रोजनी के लिए, अपने वंश के लिए याकूब जाता है। और अब याकूब 20 साल के बाद वापस लौट रहा है। हालेलुया। लबान उसका ससुर था, अब याकूब वापस जा रहा है। कहां जा रहा है? अपने पिता के घर। और जब याकूब गया अपने पिता के घर को छोड़ के, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय के 12 वचन में मैंने आपको बताया था कि उसने एंजल देखे, असेंड, द एंजल वर असेंडिंग, दूत ऊपर चढ़ रहे थे और दूत नीचे उतर रहे थे। द एंजल वर असेंडिंग एंड द एंजल वर डिसेंडिंग। और उसने एक अलौकिक सीढ़ी देखी, और मैं आपको डीएनए पे बता रहा था, सीढ़ी को हिब्रू में कहते हैं शुलाम, ऐसे स्पायरली ऊपर जाने वाली सीढ़ी देखी। और मैंने आपको बताया वो सीढ़ी, वो डीएनए जो स्वर्ग में हमें लेके जाएगा, वो प्योर डीएनए है जीसस ऑफ नाज़रेथ, जो मरियम की कोख में तैयार किया गया। जेरा के लिए जो हिब्रू वर्ड है सीड के लिए जेरा,
उसके लिए भी न्यूमेरिक वैल्यू 130 है। सीढ़ी के लिए, शुलाम के लिए न्यूमेरिक वैल्यू 130 है। और मैंने आपको बताया इबेन, जो पत्थर उसने सिराना लेके रखा, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी 130 है। जहाँ पे यहोवा ने अपना कलाम उतारा साइनाई पे, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी 130 है। 130 न्यूमेरिक वैल्यू है डीएनए की, प्योर जीनोम की, दैट विल असेंड टू हेवन। तो याकूब जाते समय भी एंजल्स देखता है, और याकूब जब लौट रहा है तो भी उसके साथ कौन है? एंजल। यहाँ पे देखता है, वो होस्ट देखता है एंजल्स का। एंड ही कॉल्ड द नेम ऑफ दैट प्लेस महानेम। उसने उस जगह का नाम महानेम रखा, अर्थात दो झुंड। एक झुंड जिसमें उसकी पत्नियां, उसकी कंक्यूबाइन, उसके नौकर चाकर, उसके बच्चे, 11 बेटे और वो, और दूसरा झुंड स्वर्गदूतों का। परमेश्वर याकूब की रक्षा करता है। डिस्पाइट हु जेकब इज, डिस्पाइट हिज कैरेक्टर, डिस्पाइट हिज बिहेवियर, हिज लाइफस्टाइल, डिस्पाइट व्हाट ही डिड, परमेश्वर उस प्रॉमिस की, उस प्रोफेसी की रक्षा कर रहा है। अगर आपको प्रोफेसी याह की ओर से मिली है तो वो पूरी होगी। याह अपने प्रोफेटिक वर्ड की रक्षा करता है। याह ने प्रोफेसी दी, सबसे पहला प्रॉफिट याह है। उसने अदन के बाग में प्रोफेसी दी और कहा वुमन को, योर सीड शैल क्रश द हेड ऑफ द सीड ऑफ द सर्पेंट। हालेलुया। तो परमेश्वर उस प्रोफेसी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन याकूब जब यहां से गया था 20 साल पहले, याकूब ने 20 साल पहले कुछ बीज बोए थे। वो बीज बो के चला गया था पीछे। अब उन बीजों की फसल तैयार खड़ी है जो याकूब को काटनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि सोइंग एंड रीपिंग इज इटर्नल, एंड सोइंग एंड रीपिंग इज नॉट ओनली कनेक्टेड टू मनी अलोन। सोइंग एंड रीपिंग का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। उसके अंदर पैसा सिर्फ एक डायमेंशन है। स्वर्ग के राज्य में सबसे पहले पायदान पे सबसे नीचे मनी है, उसके ऊपर बहुत गहरे वर्चूज हैं जिनको हमने परसू करना है, जिनका हमने पीछा करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हार्वेस्ट खड़ी है। जो कुछ मनुष्य बोएगा उसकी कटनी काटेगा। रोमियो 7:24 में प्रेरित पौलुस कहता है, व्हाट अ रेचेड मैन एम आई, हु इज गोइंग टू डिलीवर मी फ्रॉम दिस बॉडी ऑफ सिन। कटनी काटनी पड़ेगी जो बोओगे। इफ यू सो कार्नैलिटी यू विल रीप फॉर योर फ्लैश डिस्ट्रक्शन। इफ यू सो इन द स्पिरिट यू विल रीप इटर्नल हार्वेस्ट। हालेलुया। अब याकूब जो है उसको पुराना सब कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे लिखा है, एंड ही कमेंडेड, यहाँ पे तीसरा वचन, जेकब सेंट मैसेंजर्स बिफोर हिम टू ईसाऊ हिज ब्रदर अनटू द लैंड ऑफ सीर द कंट्री ऑफ ईडम। जो ईडम की कंट्री है, जो ईसाऊ का बीज है, उन्हें ईडोमाइट कहा जाता है। आपको मालूम, हेरोदेस जो राजा था वो ईसाऊ का बीज है। ईसाऊ के बीज के ऊपर किसी समय हम स्टडी करेंगे, बहुत गहरा अध्ययन है। ईडोमाइट्स कौन है? ईसाऊ बहुत बड़ा शेख था, जिसे शीख वर्ड था पहले, जिसे अब शेख कहा जाता है। ये इतना योरावर बंदा था कि होर पर्वत के ऊपर आधे रिच और आधे मनुष्य रहते थे। होराइट, वो होराइट जनरेशन थी। वो रिच की मानंद थे, आधे रिच और आधे ह्यूमन बीइंग, हाइब्रिड रहते थे। ईसाऊ ने वहाँ जाके लड़ाई करके उनको सबको मार भगाया और उस पहाड़ के ऊपर कब्जा जमाया, सीर पहाड़ के ऊपर होराइट्स को निकाल दिया। और ये बहुत बड़ा एक शेख, एक बहुत बड़ा जिसे हम हाकिम कहेंगे, वो बन चुका था। और याकूब इससे डर रहा है क्योंकि याकूब को 20 साल पहले बोए गए अपने बीज स्मरण आ रहे हैं। एंड ही कमेंडेड, अपने नौकरों को क्या कहता है? कमेंडेड देम सेइंग, दस शैल ही स्पीक अनटू लॉर्ड ईसाऊ, thy servant Jacob saith, thus I have sojourned with Laban and stayed there until now, but I have oxen and asses and flock, men servant, women servant, and I have sent to tell my Lord that I may find grace in thy sight। याकूब क्या कहता है कि मैं अपने ससुराल में, अपने ससुर के घर में रहा, लेकिन अब मैं वापस लौट रहा हूँ। 32 अध्याय पढ़िएगा,
उत्पत्ति की पुस्तक, और मेरे स्वामी ईसाऊ से ये कहना कि अब मैं अपने जानवरों के साथ, पूरे माल दल के साथ, अपने नौकर नौकरानियों के साथ आ रहा हूँ और मुझे तेरी दृष्टि में अनुग्रह मिले। वो डर रहा है अंदर से, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं कुछ बुरे बीज बो के गया था, तो मुझे उसकी कटनी काटनी पड़ेगी। तो क्या लिखा है कि वहाँ पे उसे एंजल्स मिलते हैं, एंजल्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। तो यहाँ पे लिखा है वो उन मैसेंजर को भेजता है, एंड द 6ठे वचन में, एंड द मैसेंजर रिटर्न टू जेकब सेइंग, वी केम टू दाई ब्रदर ईसाऊ ऑल्सो, ही कमिथ टू मीट दी विद 400 मैन। वो गए नौकर ईसाऊ से मिले और वापस लौट के आए और बताते हैं कि 400 बंदों को लेके तेरा भाई आ रहा। शायद याकूब और डर गया इस बात से। तो क्या लिखा है, देन जेकब वॉज ग्रेटली अफ्रेड एंड डिस्ट्रेस्ड। लेकिन ईसाऊ के दिल में याकूब के लिए कोई बुरी भावना नहीं है अभी, पर याकूब डर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो बीज मैं बो के गया था उनकी कटनी मुझे काटनी पड़ेगी। तो याकूब डर रहा है। लेकिन ये एंजल यहोवा ने पहले डिलीवर कर दिए। एंजल्स जाके ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि याकूब के अंदर मसीह है। यीशु मसीह याकूब के बीज में है। याकूब में से 12 गोत्र, 12 गोत्रों में से यहूदा का गोत्र, यहूदा के गोत्र में से राजा दाऊद, राजा दाऊद के गोत्र में से आगे मरियम, और मरियम के अंदर यहोवा का डीएनए जाएगा और यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो लिखा है वो बहुत डर गया। उसने क्या किया, ही डिवाइडेड द पीपल दैट वर विद हिम एंड द फ्लॉक, हर्ड एंड कैमल इन 2 बैंड्स। 2 झुंडों में उसने अपने आप को बांट दिया। उसने पहले 2 झुंड इसलिए कहा क्योंकि एक झुंड दूतों का उसके साथ है, लेकिन फिर भी वो डर रहा है। 2 झुंड में बांट लिया कि अगर एक झुंड को ईसाऊ मार देगा तो एक झुंड कम से कम बचा रहेगा। वो यहाँ पे लिखा है, एंड ही सेड, इफ ईसाऊ कम टू वन कंपनी एंड स्माइट इट, एंड द अदर कंपनी विच इज लेफ्ट शैल एस्केप। एंड जेकब सेड, ओ गॉड ऑफ माई फादर Abraham, गॉड ऑफ माई फादर Isaac, लॉर्ड विच saith unto me, return unto thy country and to thy kindred, and I will deal with thee. I am not worthy of the least of all the mercies and of all truth which thou hast shewed unto thy servant. For with my staff I passed over the Jordan, now I have become 2 bands. याकूब अब यहोवा के आगे टूट रहा है। यहोवा के चरणों में क्या विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तो किसी लायक भी नहीं था। मैं जब 20 साल पहले गया था, यहाँ से ये क्रॉस किया था, मैंने रिवर क्रॉस किया था, मेरे हाथ में एक डंडा था। आज मेरी 2 बीवियाँ, मेरे 11 बच्चे, 2 कनक्यूबाइन, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारी दौलत, बहुत सारा धन, बहुत सारे मेरे पास कैटल हैं। ये सब मुझे प्रभु आपने दिए हैं। तो क्या कहता है 11 वचन में, डिलीवर मी आई प्रे दी फ्रॉम द हैंड ऑफ माई ब्रदर, फ्रॉम द हैंड ऑफ ईसाऊ, फॉर आई फियर हिम lest he will come and smite me and the mother with my children. And thou saidest, I will surely do thee good and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for the multitude. And he lodged there that night and took of that which came to his hand a present for his brother Esau. उस रात वो वहीं रुका। उसने यहोवा से ये प्रार्थना की, विनती की। और कैसे प्रार्थना की? तौबा करके, अपने आप को दीन करके, अपने आप को यहोवा के आगे हलीम करके। जो प्रार्थना यहोवा के सिंहासन की ओर चढ़ती है खुशबू की तरह, वो टूटे दिल से निकलती है। घमंड में, अहंकार में, दिखावे में अगर आप प्रार्थना करते हो, उसे यहोवा स्मेल नहीं करता। वो यहोवा के नौसल्स में दुर्गंध होती है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के आगे अपने जीवन का अंगीकार करता है कि परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और क्या करता है? उस रात पीछे रहता है और अपने भाई के लिए गिफ्ट तैयार करता है। अगर आप नीति वचन 21 का 14 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, गिफ्ट इन सीक्रेट पैसिफाइड द एंगर। गिफ्ट देने से क्रोध शांत हो जाता है। हालेलुया। याकूब यूजरपर, ये वो याकूब है जब उसका भाई उसकी माँ की कोख में से बाहर आ रहा था ईसाऊ, वो उसकी एड़ी को पकड़ के खींच लेता है पीछे, ताकि पहलौठे का हक ना मिल सके उसको। हालेलुया। ये वो याकूब है जिसका नाम याकूब इसलिए रखा गया,
याकूब का मतलब होता है यूजर्पर, किसी का हक छीनने वाला, धोखा करने वाला, चीट करने वाला, स्विंडलर इसका नाम होता है। हालेलुया। लेकिन ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे, बड़ी अद्भुत प्रार्थना है ये पूरी बाइबल में, और अपने आप को यहोवा के आगे क्या कर रहा है? दीन कर रहा है, हम्बल कर रहा है। आपको मालूम, कई बार हमने जो उपलब्धियां हासिल की होती हैं, जो हमारी अकॉम्प्लिशमेंट होती है, जो कुछ हमने पाया होता है, हासिल किया होता है, हम उसके गुरूर में रहते हैं। आपको जो एजुकेशन ली आपने, आप बहुत हाई एजुकेशन लेके बड़े हाई एशलॉन के अंदर जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस आपका, बहुत बड़े घर में, मल्टी मिलियन के घर में रहते हैं, बहुत फैंसी गाड़ियां आपके घर के आगे खड़ी हैं, बहुत बड़ी वार्डरोब है आपकी, बहुत आपका फैंसी घर है, बड़ा हैवी बैंक बैलेंस है। ये अकम्पलिशमेंट के गरूर में जब आप चलते हो, यहोवा आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, आपकी प्रार्थना यहोवा तक नहीं जाती। ये जो लॉरल्स लगाए ना, मेडल हमने इन्हें इधर, इनको निकाल के फेंक दीजिए और यहोवा के आगे दीन हो जाइए। याकूब असल में यहोवा परमेश्वर के आगे अपील करता है। हालेलुया। यहोवा के आगे प्रार्थना करता है, विनती करता है यहोवा। आपको मालूम, याकूब जब निकला था मैंने आपको बताया था, याकूब की पत्नी रेचल अपने पति से बहुत प्यार करती है। वो अपने पिता के देवते ले आती है संग में, और उन देवतों के लिए जो हिब्रू नाम है वो है टराफीम। मैंने आपको बताया था टराफीम क्या होते हैं। जब पुराने समय में कौमों के जो बुज़ुर्ग होते थे, बड़े रुतबे वाले, वो मर जाते थे तो उनका ये हिस्सा काट लेते थे, बाकी बॉडी उनकी दफन करते थे, इस हिस्से को काट के मम्मफाई कर देते थे, उनको मसाले लगा के पूरी तरह प्रिपेयर करके, तो उनकी ये जो पूरा हिस्सा होता था ये प्रिजर्व हो जाता था, और इसे छत के, इसे घर की दीवारों पे टांगा होता था। और वो बिलीव करते थे कि उनके पुरखों की आत्मा उसके द्वारा बोलती है उनसे, उन्हें गाइड करती है। वो उनकी पूजा करते थे। पितरों की पूजा वचन में घृणित है, यहोवा ने वर्जित किया पितरों की पूजा, लेकिन उस समय की कौमें पितरों की पूजा करती थीं, और इस्राएली लोग भी श्राप में गिरे, पितरों की पूजा के श्राप में गिरे। हालेलुया। वो ले आई, किस लिए ले आई? क्योंकि वो सोचती थी ये सहायता करेंगे हमारी यात्रा बहुत लंबी है, मेरे पति की सहायता करेंगे। उसको कहानी पता थी ईसाऊ की, कि उस समय ये देवता हमारे सहायता करेंगे, हमारी युद्ध करेंगे हमारे लिए। लाबान के देवता चोरी हो गए, लाबान पीछे आया। अगर आपके देवता चोरी हो जाएंगे, आपको देवताओं का नया सेट लाना पड़ेगा। लेकिन रेचल ने धोखा किया, वो ऊँट से उतरी नहीं और कहा कि मैं मासिक धर्म से हूँ, और उसका पिता चला गया। उसने झूठ बोला। अगर आप देखेंगे वचन को ध्यान से, उसके थोड़े अरसे बाद रेचल की मौत भी हो गई। आपको मालूम, इज़राइल के पास रोशनी है खुदा की। इज़राइल इज़ द लाइट ऑफ गॉड। ये कलाम यहोवा की रोशनी है। दिस इज़ द लाइट ऑफ याह। हालेलुया। यू डोंट नीड एनी अदर इल्यूमिनेशन। यही आके नखाश ने अदन के बाग में ऑफर किया था। सम काइंड ऑफ सुपीरियर नॉलेज, सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा रेवलेशन। आपको न्यू एज की फिलॉसफी नहीं चाहिए, आपको कोई मिस्टिक नॉलेज नहीं चाहिए, सीक्रेट इल्यूमिनेशन नहीं चाहिए आपको। आपके पास ये रोशनी है, यहोवा की रोशनी है। और वचन बताता है हमारी संगति किसके साथ है? हमारी फेलोशिप है विद द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। फेलोशिप के लिए ग्रीक वर्ड है कोइनोनिया। आप पुत्र, पिता, पवित्र आत्मा के संग संगति करते हैं। आप संसार के संग फेलोशिप नहीं कर सकते। संसार में आप रहते हैं, लेकिन संसार में आप फेलोशिप नहीं कर सकते। संसार की आपके साथ जो कनेक्शन है वो सिर्फ ह्यूमैनिटी का है। हालेलुया। आप स्पिरिचुअली वहीं कनेक्ट होंगे, कोइनोनिया, फेलोशिप में, जहाँ पे यहोवा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया जाता है। याकूब कहता है मेरे पास एक डंडा था। याद करें आपके पास क्या था जब प्रभु ने आपको बुलाया, और आज प्रभु ने आपको क्या कुछ दिया है। क्या आप धन्यवाद करते हैं प्रभु का? आपके हृदय धन्यवादिता से भरे हैं, या आप परमेश्वर की आशीषों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या शुक्रगुजारी करते हैं? कभी मत भूलिए आप कौन थे, आप कहाँ से आए हो। पतरस कहता है वो भूल जाते हैं कि वो गंदे थे और उन्होंने प्रभु ने उनको धोया, पर्ज किया।
कभी अपना अतीत मत भूलिए, उसे स्मरण रखिए ताकि आप दीन रहें। तो यहाँ पे 13 वचन में लिखा है, ही लॉज देयर द सेम नाइट, 32 का 13, एंड टुक ऑफ दैट विच केम टू हिज हैंड ए प्रेजेंट फॉर हिज ब्रदर ईसाऊ। वो डरा है, अपने भाई के लिए तरह तरह के उपहार, तोहफे इकट्ठे कर रहा है। हालेलुया, तोहफे इकट्ठे कर रहा है ताकि उसका भाई प्रसन्न हो जाए। और लिखा है 200 शी गोट एंड 20 ही गोट, 200 यूज, 20 रैम, 30 मिल्क कैमल एंड देयर कोल्ट्स, 40 काइन एंड 10 बुल्स, 20 शी एसेज एंड 10 फोल्स। और देखिए 16 वचन पढ़िए इसका, 32 का 16, एंड ही डिलीवर्ड देम इनटू द हैंड ऑफ हिज सर्वेंट्स। अपने नौकरों के हाथ में सारे तोहफे भेजे। नौकरों के 3 झुंड बना दिए। एक झुंड को बोला ये तोहफे लेके आगे जाओ, फिर उसके बीच में गैप रखा, फिर दूसरे झुंड को बोला तुम ये तोहफे लेकर जाओ, फिर तीसरा झुंड रखा कि तुम ये तोहफे लेकर जाओ। और जब पूछे तो बताना कि ये तोहफे तेरे दास याकूब ने भेजे हैं, ताकि उन तोहफों से ईसाऊ का हृदय पिघल जाए। लेकिन याकूब को मालूम नहीं था कि महानेम के एंजल ऑलरेडी ईसाऊ के मन को मोल्ड कर दिए हैं। ईसाऊ के दिल में अब एनिमोसिटी नहीं है, एंगर नहीं है, लेकिन इस बात का याकूब को अभी भेद नहीं है। और लिखा है एंड ही डिलीवर्ड देम इनटू द हैंड ऑफ हिज सर्वेंट्स, ये हमने पढ़ लिया। एवरी ड्रोव बाय देमसेल्व्स एंड सेड अनटू द सर्वेंट्स पास ओवर बिफोर मी एंड पुट अ स्पेस बिटविक्स्ट ड्रोव एंड द ड्रोव, बीच में गैप रख के जाना झुंड बन के। एंड ही कमेंडेड द फोरमोस्ट सेइंग व्हेन ईसाऊ माय ब्रदर मीटेथ thee and asketh thee, saying, whose art thou, and whither goest thou, and whose are these before thee? Then thou shalt say, they be thy servant Jacob's, and it is present sent unto my lord Esau, and behold, also he is behind us. तो बोलना कि ये तेरे दास, तेरे नौकर याकूब ने भेजे तोहफे हैं, और ये नौकर चाकर सभी तेरे दास याकूब के हैं, और तेरा दास याकूब भी पीछे तुझे मिलने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है सो ही कमेंडेड द सेकंड एंड द थर्ड एंड ऑल फॉलोड ड्रोव सेइंग ऑन द मैनर शैल ई स्पीक अनटू ईसाऊ व्हेन ही फाइंड हिम। वो ईसाऊ को वही जाकर बोलते हैं जो याकूब ने कहा है। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पे इसका 22 वचन पढ़ें, 32 का 22, एंड ही रोज अप दैट नाइट एंड टुक हिज 2 वाइफ्स। वो रात को उठा और उसने अपनी 2 पत्नियां ली, और 2 विमेन सर्वेंट्स एंड 11 सन्स, 11 अपने बेटे लिए, बीवियां ली, कंक्यूबाइन ली, एंड पास्ड ओवर द फोर्ड जेबॉक को पार कर गया। एंड ही टुक देम एंड सेंट देम ओवर टू द ब्रुक, उस दरिया नदी की परली तरफ उनको भेज दिया, अपनी बीवियों को, कंक्यूबाइन को, बच्चों को। एंड सेंट ओवर दैट ही हैड, और जो कुछ उसके पास था वो भी भेज दिया। अब सुने 24 वचन, एंड जेकब वॉज लेफ्ट अलोन, याकूब पीछे अकेला रह गया। हालेलुया। क्या रह गया? याकूब पीछे रह गया अकेला। और क्या लिखा यहाँ पे? एंड देयर रेसल्ड अ मैन विद हिम अंटिल द ब्रेकिंग ऑफ द डे। हालेलुया। तब क्या हुआ? याकूब पीछे रह गया तब कोई उसके साथ मल्ल युद्ध करता है पूरी रात। देखें स्वर्गदूत कितने शक्तिशाली हैं। अगर एक स्वर्गदूत किसी बंदे को ऐसे यूं उंगली से टच करेगा, वो मुझे लगता है 10 मील पीछे जाके गिरेगा। आपको मालूम, एक फरिश्ते ने सनकरीब की सेना आई थी पूरी की पूरी यहूदा के खिलाफ मोर्चा बांधा था। हिजकिया राजा था, सनकरीब की सेना, सीरियन, 1,85,000 लोगों को मारा। 2 लाख की सेना थी, शायद 15,000 भाग गए या 15,000 कुचले गए। 1,85,000 को एंजल ने मार डाला। 1,85,000 बंदे की क्या जुर्रत है। इंसान तो मिट्टी है कि फरिश्ते के संग सारी ठहरा रहे। यहाँ पे लिखा है ही रेसल्ड ए मैन विद हिम अंटिल द ब्रेकिंग ऑफ द डे। एक मैन लिखा यहाँ पे। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय का 4 वचन पढ़ें। होशे की पुस्तक निकालिए, होशे नबी
पढ़िए, बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है, होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय का 4 वचन। सुनिए क्या लिखा है होशे नबी ने। ये ही हैड पावर ओवर द एंजल एंड प्रिवेल्ड। अब ये मिस ट्रांसलेशन है, यहाँ पे लिखा है, असली भाषा में लिखा है कि याकूब एंडोर कर गया स्वर्गदूत को। शक्तिशाली था याकूब, यहोवा की कृपा थी कि उसने दूत को एंडोर किया। हालेलुया। दूत तो यूं उठा के फेंक सकता है पुरुष को, पूरी रात उसने दूत को क्या किया? एंडोर किया। हालेलुया। ही वेप्ट। दूत के आगे उसने क्या किया? रोया। हिब्रू वर्ड है बाका, वो रोया। और उसने एंडोर किया, जो वर्ड है याकूल वर्ड है हिब्रू में। याकूल का मतलब ठहरना आगे। यहोवा के दूत, ये यहोवा का दूत कोई साधारण दूत नहीं है, ये प्री इनकारनेट क्राइस्ट है। मरियम की कोख में देह हासिल करने से पहले यीशु मसीह अपनी जलाली देह में है, दूत के रूप में है। ये खुद खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके संग याकूब क्या कर रहा है? मल्लयुद्ध कर रहा है। और लिखा है ही वेप्ट, याकूब रोया। किसके आगे रोया? रोने के लिए वर्ड है बाका, जिसका असली बाका का मतलब विलाप करना। विलाप किया उसने। और क्या लिखा आगे? मेड सप्लीकेशन। सप्लीकेशन के लिए हिब्रू वर्ड है खानान, जिसका मतलब अपने हृदय से दरखास्तें रखी उसके आगे, बेनतियां रखी उसके आगे उससे एक फेवर मांगा, उसकी कृपा चाही, उसे कहा मुझ पे करुणा कर। ये दूत नहीं है, स्वयं खुदावंद यीशु मसीह है। थियोफनी है ये। यीशु मसीह, जलाली यीशु, मरियम की कोख में देह धारण करने से पहले भी उसके पास एक जलाली शरीर है। वो यीशु मसीह है जिसके आगे रोता है याकूब, और जिसके आगे खनान करता है, उसके आगे इंट्रीटी करता है, उसके आगे करुणा की, दया की भीख मांगता है। हालेलुया। मेड सप्लीकेशन अनटू हिम, ही फाउंड हिम इन बेतेल एंड देयर ही स्पेक विद हिम। वो उसके आगे विलाप किया, रोया, उससे उसने कृपा चाही। हालेलुया। अगर हम वापस लौटेंगे 32 अध्याय में 32 अध्याय में वापस लौटिए, और मैं चाहता हूं आप एक वचन पढ़ें। याकूब क्या कहता है? यहां पे लिखा है, एंड व्हेन ही सॉ दैट ही प्रिवेल्ड नॉट अगेंस्ट हिम, ही टच्ड द हॉलो ऑफ हिज थाई। यीशु मसीह उसकी थाई की हिप जो होती है, जहां पे सॉकेट होती है, उसको छुआ यीशु मसीह ने। द हॉलो ऑफ जेकब्स थाई वॉज आउट ऑफ जॉइंट एज ही रेसल्ड विद हिम। उसको हल्का सा छुआ और याकूब लंगड़ाने लगा। आपको मालूम, जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका एनकाउंटर होगा तो आपके अंदर एक परमानेंट निशान रहेगा उस एनकाउंटर का, ताकि आप याद रखो कि आपकी भेंट यीशु मसीह से हुई। आपको एक एनकाउंटर चाहिए। जब आपका एक एनकाउंटर हो जाएगा ना यीशु मसीह के साथ, एक मुलाकात, एक भेंट, ये कलाम जिंदा हो जाएगा। वरना आप थियोलॉजी, वरना आप इंसान का ज्ञान अपने पास रखोगे। एक एनकाउंटर चाहिए। एक एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ इंसान का जीवन बदल देता है। आपको मालूम याकूब क्या कहता है? सुनिए ध्यान से जरा। यहां पे क्या लिखा है? वो लिंप करने लगा, बिकॉज ही रेसल्ड विद द किंग ऑफ ग्लोरी, एंड ही सेड लेट मी गो फॉर द डे ब्रेकeth, एंड ही सेड आई विल नॉट लेट दी गो एक्सेप्ट दाउ ब्लेस मी। मुझे बरकत दे, ब्लेस मी, मुझे बरकत दे। यीशु मसीह से कहता है। कौन? याकूब। आपको मालूम, याकूब को मालूम है, याकूब का विवेक उसे धिक्कार रहा है कि 20 साल पहले जो बरकत तूने ली अपने बाप से, वो तूने धोखे से ली। वो बरकत जिन्वन नहीं है। तूने अपने भाई के हक को छीना। तू यूजर्पर है, स्विंडलर है, चीट है, चालाकी करता है। तूने अपनी माँ की ममता का दुरुपयोग किया, अपनी माँ के साथ प्लॉट करके अपने बूढ़े बाप को, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये यहोवा का नबी था। आइजक वॉज अ प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। तूने उसके प्यार को बिट्रे किया। बरकत हासिल करने के लिए तूने कैसे हथकंडे अपनाए। आपको मालूम, आज लोग बरकत चाहते हैं,
भागते हैं झूठे नबियों के पीछे, अपोस्तलों के, झूठे पापाओं डैडियों के पीछे भागते हैं, ब्लेस मी पापा, ब्लेस मी पापा। याकूब ने बरकत हासिल की है पहलोटे की, लेकिन अब अंदर से खोखला महसूस कर रहा है कि जिस ढंग से मैंने हासिल की वो ढंग सही नहीं था, और उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है। अब उसे असली बरकत चाहिए। He is with Jesus now. He doesn't want blessing from a human being. He wants God of heaven and the earth to bless. He's saying, I'm not going to leave you. Bless me. He's saying, I want the real blessing. I don't want duplicate blessing. I don't want duplicate prophecy. Prophesy, Papa, prophesy, Papa. I want real hand of the Most High come upon me. Would you bless me? I'm not going to let you go until you bless me. Jacob understands the true blessing comes from God. It doesn't come by gimmick. It doesn't come by कि आपके पास पैसा है, आप प्लेटिनम पार्टनर बन जाओ, पैसा दे के ले लो, ऐसे नहीं मिलती। Jacob understands the true blessing of God. याकूब यीशु मसीह को कहता, ब्लेस मी, मुझे तेरा हाथ चाहिए, मुझे संसारिक लोहा लंगड़ नहीं चाहिए, कोठी गाड़ी बंगला रियल एस्टेट मिलियनियर एनोइंटिंग बिलियनियर एनोइंटिंग नहीं चाहिए। आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन मनी, इट इज ग्रेटर देन रियल एस्टेट, इट्स ग्रेटर देन अ ग्रेट बिजनेस, इट्स ग्रेटर देन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बक्स। यहोवा की ब्लेसिंग धन दौलत, संसारिक चीज़ें, संसारिक ज़मीन जायदाद, रुतबा संसार का, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, कोठी बंगला, इनसे कहीं ऊंची है यहोवा की ब्लेसिंग। वो यीशु मसीह के संग यीशु मसीह को जाने नहीं दे रहा है। मुझे ब्लेस कर, मुझे रियल ब्लेसिंग चाहिए। हालेलुया। ही हैज़ अंडरस्टूड ऑल दीज 20 years कि नकली ब्लेसिंग क्या है, धोखे से ब्लेसिंग छीनना क्या है। हालेलुया। आपको मालूम क्या होता है? सुनिए यहाँ पे, एंड ही सेड अनटू हिम व्हाट इज दाई नेम। बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन है। यीशु मसीह पूछता है याकूब से, तेरा नाम क्या है? एंड ही सेड जेकब। इसी के अंदर सारा भेद है। वो पूछता तेरा नाम क्या है, वो कहता मेरा नाम दगाबाज है, मेरा नाम है धोखा देने वाला, मेरा नाम है चीट करने वाला। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर के आगे जाते हो अपने रुतबे से, अपनी शोहरत को लेके बोस्टिंग करते हुए, आप कौन हो, आप शोफ करते हो, आप दिखावा करते हो, बड़े घमंड से जाते हो उसके आगे, वो आपकी सुनता नहीं। जब आप उसके आगे जाते हैं ह्यूमिलिटी में, जब आपके हाथ शेक करते हैं, जैसे डरते हो, कांपते हो, आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, अगर तू नहीं तो मैं, अगर तेरा हाथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब ऐसी दीनता में प्रभु के आगे जाते हो, ही शोज मर्सी। व्हेन यू क्राई आउट इन ह्यूमिलिटी, ही शोज मर्सी। जीसस खड़ा है यहाँ पे, वो जीसस के शायद कपड़े पकड़ रहा है। वचन में लिखा, हारून के सर के ऊपर उंडेला गया अभिषेक, टपकता हुआ दाढ़ी से, यहाँ से चोता हुआ, हेम ऑफ द गारमेंट, वो जो कुर्ता होता है याजक का, उसके हेम में से वहाँ पे नीचे छोटे छोटे वो लगे होते हैं जिन्हें तलीत बोलते हैं, जिन्हें कहा गया है सूर्य की किरणें। मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय के पहले दूसरे वचन में, द सन ऑफ राइचियसनेस शैल राइज विद हीलिंग इन विंग्स, वो विंग्स हैं उसके। उसने ऐसे पकड़ लिया यीशु मसीह को कस के कि मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। और वो जानता है ओनली जीसस कैन ब्लेस, और वो जानता है अब मुझे ब्लेसिंग चाहिए राइट मैनर से। हालेलुया। वो कहता है तेरा नाम क्या है? वो बोलता मेरा नाम यूजरपर है। वो कहता है अब तेरा नाम यूजरपर नहीं होगा, योर नेम शैल बी इजराइल, यशरेल, स्ट्रेंथ ऑफ एलोहीम, पावर विद गॉड, और इट कैन बी ट्रांसलेटेड पावर ऑफ गॉड, इसराइल। हालेलुया। प्रिंस विद गॉड। हालेलुया। यहोवा की आंख की पुतली, यहोवा के अपने अलग किए न्यारे किए गए लोग। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब देखिए, मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, एंड जेकब आस्क्ड हिम एंड ही सेड, टेल मी आई प्रे दी नाउ thy name. And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. वो यीशु मसीह का नाम पूछता है,
यीशु मसीह कहता तू मेरा नाम क्यों पूछता है? एंड लिखा है जीसस ब्लेस्ड हिम देयर एंड जेकब कॉल्ड द नेम ऑफ द प्लेस पेनियल। पेनियल का मतलब मैंने खुदा का चेहरा देखा। कौन है खुदा का चेहरा? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। फिलिप्पस प्रभु से कहता है प्रभु आप पिता की बात करते हो, हमें पिता दिखा दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं फिलिप्पस मैं कब से तेरे साथ हूँ, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। एक ही है जिसने ये बात कही, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वचन में लिखा है इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। जब यीशु मसीह निकोदेमस से ये बात कर रहे हैं, यीशु मसीह देह में निकोदेमस के सामने खड़े हैं, लेकिन फिर यीशु मसीह निकोदेमस को ये भी कहते हैं कभी किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। जब यीशु मसीह निकोदेमस से धरती पे बात कर रहे हैं इंसान की देह में, उस समय यीशु मसीह पिता की गोद में भी बैठे हुए हैं। वो यहाँ भी है और वहाँ भी है, बिकॉज ही इज इटर्नल गॉड, ही इज इनफाइनाइट, ही इज ऑलमाइटी, ही इज ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट। वो हर जगह है, वो सामर्थी है, अजन्मा है, अगोचर है, सृष्टि का रचिता है, ब्रह्मांड का मूल है, यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, वो राह, हक और ज़िंदगी है, वो स्वर्ग से उतरी जीवन देने वाली रोटी है, वो भेड़ों का द्वार है, हालेलुया। वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, वो अमीन है, वो वफादार है, वो धर्मी है, हालेलुया। वो सदाकत से न्याय करता है, हालेलुया। वो अब्दियत का बाप है, वो वंडरफुल काउंसलर है, हालेलुया। वो जगत की ज्योति है, वो भेड़ों का वो गडरिया जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है, हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं। वो कहता मैं हूं, आई एम हाइया अशर हाइया, मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया। उसने उसको ब्लेस किया। और याकूब क्या कहता है? मैंने परमेश्वर का चेहरा देखा। यीशु मसीह परमेश्वर का चेहरा है। वचन में लिखा है इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने पिता को प्रकट किया। ग्रीक वर्ड है एक्सोगियोमाई, जिसका मतलब क्या है? मैंने आपको एक दिन बताया था। मान लो आपके घर में पिकासो, माइकल एंजेलो जैसे बड़े स्कल्प्टर या पेंटर आ जाएं, आपके घर में एक खूबसूरत पेंटिंग हो और पिकासो कहे कि मैं आपके लिए इस पेंटिंग के जैसी पेंटिंग बनाता हूँ। आप 2 घंटे के लिए घर से बाहर चले जाएं, आप बाहर चले जाते हैं, आप 2 घंटे के बाद आते हैं, पिकासो ने आपकी पेंटिंग जैसी एक पेंटिंग बना के आपकी दीवार पे चिपका दी है। एक पेंटिंग ओरिजिनल पहले की लगी है, एक पिकासो ने बना दी वो लगी है, आपको पता ही नहीं लग रहा असली कौन सी है। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का प्रतिबिंब है, महाप्रतापी परमेश्वर के चेहरे का तेज है, उसका पूरे का पूरा स्वरूप है। पंजाबी में कहते हैं इन बिन उतारा है, उसके अंदर पूरे का पूरा यहोवा वास करता है। वो महाप्रतापी यहोवा परमेश्वर का महाप्रतापी पुत्र है। याकूब को उसने ब्लेस किया। सही ढंग से ब्लेसिंग लीजिए, उससे लीजिए जिसका चेहरा पिता का चेहरा है। बंदों के पास बड़ी लिमिटेड ब्लेसिंग है। आप पापा डैडी के कस्टम में पढ़ रहे हैं ना, ये अफ्रीका से चला है ये कस्टम, उसको वो पिता है हमारा, वो जिंदा है, हालेलुया। उसकी ओर मुड़े, हालेलुया। वो आपको ब्लेस करेगा। आपके अंदर उसका प्रॉमिस है, उसकी प्रोफेसी है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद। पास्टर संदीप जी छोटी सी प्रार्थना करें, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी तारीफ। और सचमुच तू अज दे कलाम द्वारा आशीष किया, तेरा शुक्र करते। मेरे खुदा में जिन्ने भी ऑनलाइन ने हर एक नूं बरकत देना। और मेरे यीशु तू हर एक दे जीवन चों पापां नूं अपराधां नूं कढ दे। और मेरे यीशु अपना खून नाल धो के शुद्ध कर, पवित्र कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। आइए मिलके गाएं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, गाएं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ। परम पिता की सना, परम पिता की सना सना सना। मेरे यहोवा जैसा
खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही। झुक झुक जाओ, शीश नवाओ, झुक झुक जाओ, शीश नवाओ। सबका सहारा वही, सबका सहारा वही। यीशु मसीह तेरे जैसा दूजा कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मरकुस गिल को मैं आपके हाथ में देता हूँ, उसके बीवी बच्चे खानदान को, हरपाल सिंह को, उनके खानदान को आपके हाथ में देता हूँ। हरपाल बाजवा को, भाई अमनदीप को, हरजीत सिंह को, उनकी पत्नी को आपके हाथ में देता हूँ। सोनिया नार को आपके हाथ में देता हूँ। पास्टर सतपाल को, उनके घराने को, भागवत प्रसाद जी को, उनके घराने को आपके हाथ में देता हूँ। सिस्टर अंजू मसीह को जो ब्रिटेन से आपके लहू में छिपाता हूँ। अमरजीत कौर को, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद आशीषित करें खुदावंद। भाई जसवीर सुरेंद्र को अपने लहू में छिपाएं। राकेश कुमार को प्रभु मैं आपके लहू में छिपाता हूँ। सुरजीत साबी को प्रभु और उनकी माता को, पिता को, घराने को आपके खून में छिपाता हूँ। मीनू सूद को प्रभु आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ। खुदावंद आपकी आशीष हो। हालेलुया। प्रभु लीजा क्रिस्टी को ब्लेस करें, अपने खून में छिपाएं। प्रभु हम मिलके तरश भाई के लिए जो न्यूयॉर्क में है, तरश बलवा के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष का हाथ उनके ऊपर और रमन खान के ऊपर, उनके भाइयों के खानदानों पे आपके लहू की कुदरत को खोलते। राज बिन पलके को आपके लहू में छिपाते हैं। कोमल मसीह को, उनके पति साइमन मसीह को, उनके बच्चों को आपके खून में छिपाते हैं। खुदावंद बॉबी आर्ट को, उनके भाइयों को जो सेवकाई करते हैं आपके लहू में छिपाते हैं। प्रभु हम जॉनसन यूसुफ को जो फिलिपीन से हैं शायद या सिंगापुर से, आपके खून में छिपाता हूँ खुदावंद यीशु नासरी। साहिल भाई को जो पाकिस्तान से आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद बहुत से लोग ऑनलाइन हैं जिनके नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एक एक जन को आपके खून में छिपाता हूँ। अपनी आशीष का हाथ बढ़ाएं, मेरे को भी प्रभु अपने लहू में छिपाएं। ब्लेस मी किंग ऑफ ग्लोरी, ब्लेस मी किंग हु स्टूड एट जबोक महानेम, bless me like you bless my father Jacob, bless us, bless our homes and families। तेरे लहू की जय जयकार हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं। पीटर सिंह भाई को भी बरकत दें, इमैनुअल सोहता को बरकत दें। प्रभु मैं रवि प्रकाश गुप्ता को के ख़ानदान को आपके हाथ में देता हूँ खुदावंद, अपनी आशीष दें। भाई हरपाल को आशीष दें, हरजिंदर पाल को आशीष दें खुदावंद, बरकत दें। तेरा धन्यवाद प्रभु आज की सभा के लिए। यीशु हालेलुया। सबको जय मसीह की। आई बिलीव गॉड इज़ ब्लेसिंग यू। आई बिलीव द होली स्पिरिट इज़ टीचिंग यू द डीप थिंग्स ऑफ हिज वर्ड। प्लीज़ टेक देम इनसाइड। इन्हें सोक कर लें अपने अंदर, इनका एक्सट्रैक्ट निकालें अपनी आत्मा में। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। अगर आप में से किसी के दिल में प्रभु काम करे कोई बीज बोने के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन सो अ सीड एंड गॉड विल ब्लेस यू। यीशु मसीह आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की।